قیام خاص طور پر ہمیں یہ موقع بخشتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب جائیں اور خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، کیونکہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ روز اول سے، جب سے خدا نے انسان کو بنایا، اس میں اپنا روح پھونکا ہے، تو خدا اور انسان کا رشتہ بہت گہرا ہے، کیونکہ خدا نے اپنی روح پھونکی ہے، سو ایک بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پھر وہ نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں بھی اکثر مقامات پر خدا انسان کے ساتھ اپنے رشتے کو جو ہے وہ ثابت کرتا رہا۔ ایون جب انسان خدا کی خوشنودی حاصل کرتا رہتا ہے اور خدا کو خوش کرتا رہتا ہے، تو خدا ہمیشہ اسے اپنا کہتا رہتا ہے۔ اور جب موسیٰ کو خدا 40 دن پہاڑ پر بلانے کے بعد کہتا ہے کہ جا اور نیچے میرے لوگوں کو جا کر یہ احکامات بتا، یہ شریعت بتا میرے لوگوں کو، لیکن وہی لوگ جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، تو پھر خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ جا دیکھ نیچے تیرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ رشتہ صرف خدا کی خوشنودی کا ہے۔ جب ہم خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، تو خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تاک میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ اتنا گہرا رشتہ، جس طرح درخت میں تاک اور ڈالیوں کا رشتہ ہے، جڑ اور ڈالیوں کا رشتہ ہے، اسی طرح خدا اور انسان کا رشتہ ہے۔ سو خدا انسان کو پیار کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ اس کی بہتری چاہتا ہے۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ان روزوں کے ایام میں جو پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں عطا کرتی ہے اور کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ روزے رکھنا ہم پر واجب ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم پرانے عہد نامے سے دیکھتے ہوئے آئیں تو مختلف مقامات پر پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں روزے کا ذکر ہمیں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ سب سے پہلے روزوں کا اگر ذکر دیکھیں تو موسیٰ کے 40 روزے، جب خدا نے اسے کوہ سینا پر بلایا اور اپنی شریعت اسے عطا کی، تو موسیٰ 40 دن تک پہاڑ پر خدا کی حضوری میں رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ تو وہ 40 دن تک، وہ پہلا روزہ جو ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، وہ موسیٰ کا، جب وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور بھی ہمیں اکثر مقامات پر ہم 2 4 روزوں کے ذکر کو ہم خاص طور پر اس کو وہ کریں گے، حالانکہ بہت اکثر مقامات پر اس میں جب شاؤل کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب شاؤل انتقال کر جاتا ہے، تو سیمیول 7 دن کا روزہ رکھتا ہے، داؤد 7 دن کا روزہ رکھتا ہے۔ پھر عزرا میں اگر ہم دیکھیں، عزرا کی کتاب، تو میرے عزیزو اس میں ہمیں 1 دن کا روزہ ملتا ہے۔ اور پھر نینوا میں جب خدا نے اپنا قہر دکھانے والا تھا، جب اپنا قہر نازل کرنے والا تھا، تو نینوا کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا، تاکہ خدا کا قہر جاتا رہے، خدا کا قہر دور ہو جائے۔ تو نینوا کے لوگوں نے 1 دن کا روزہ رکھا۔ پھر ہم آگے اور دیکھتے ہیں تو احبار کی کتاب میں ہمیں یوم کفارہ کے دن، جب یوم کفارہ یہودی عطا کرتے تھے اپنے پورے سال کی جو ہے وہ قربانی لے کر یوم کفارہ کے طور پر گزرانتے تھے، تو وہ یوم کفارہ کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور آج تک رکھتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کے انجیل میں ہمیں 2 دن کا روزہ، جو ہفتے میں یہودی 2 دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر آستر کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آستر جب احوشویروش بادشاہ
यहूदियों को कत्ल करना चाहता है। तो आस्तर 3 दिन का रोज़ा पूरी अपनी कौम के साथ 3 दिन का रोज़ा रखती है और 3 दिन का रोज़ा रखने के बाद जो है वो बादशाह के सामने हाज़िर होती है और अपना उज़र, अपनी दरख़्वास्त बादशाह के सामने रखती है कि मेरी कौम को बख्श दिया जाए। और उस रोज़े की बदौलत बादशाह के दिल में खुदा रहम डालता है और वो माफ़ कर देता है और यहूदियों को कत्ल नहीं करवाता और अहकाम जारी कर देता है कि जिसने ये सारी प्लान किया था बल्कि उसे कत्ल कर दिया जाए। तो 3 दिन का आस्तर का रोज़ा बादशाह के इरादों को जो है वो तब्दील कर देता है। फिर मेरे अज़ीज़ों, नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन का रोज़ा, 40 दिन जब उसने बियाबान में गुज़ारे, अपना मिशनरी सफ़र शुरू करने से पहले उसने कुछ ना खाया पिया और खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर 40 दिन और रात खुदा की हज़ूरी में रहा, अपने रिश्ते को मज़बूत किया ताकि उस मिशन को जो लेकर वो इस दुनिया में आया था, उस मिशन को शुरू कर सके। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले भी जो है वो रोज़ा रखा जाता था। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह ये कुछ बहुत और भी बहुत से मकामात पर रोज़े का ज़िक्र हमें मिलता है। तो ये कुछ का ज़िक्र मैंने किया, जब हम देखते हैं कि रोज़े की फ़ज़ीलत हासिल करने के लिए इंसान रोज़ा रखता है, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए वो रोज़ा रखता है, अपने कफ़ारे के लिए वो रोज़ा रखता है, अपनी किसी ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए वो रोज़ा रखता है, अपनी बरकत को हासिल करने के लिए वो रोज़ा रखता है, अपने किसी मिशन को शुरू करने से पहले वो रोज़ा रखता है। अपना कोई काम शुरू करने से पहले वो रोज़ा रखता है। तो रोज़ा जो है वो खुदा के कहर को धीमा कर देता है, खुदा के इरादों को बदल देता है। जैसे हम नैनवा का ज़िक्र सुनते हैं कलाम मुकद्दस में, तो खुदा उस कौम से बददिल हो गया था, उनके गुनाहों से वो तंग आ गया था और चाहता था कि मैं सबको ख़त्म कर दूँ। लेकिन उस रोज़े की बदौलत खुदा अपना इरादा तब्दील करता है और नैनवा के लोगों को बख्श देता है और माफ़ कर देता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया हमें इन अयाम में ये मौका बख्शती है कि हम आजिज़ी और इनकिसारी को अपनाएँ और रोज़े की फ़ज़ीलत को समझें कि खुदा इस रोज़े की बदौलत हमसे क्या चाहता है। हम रोज़ा रखें तो फिर खुदा को खुश करने के लिए करें, खुदा को आज़माने के लिए ना करें। अक्सर दफ़ा हम एक गलती कर जाते हैं कि हम खुदा को खुश नहीं, खुदा की आज़माइश करने लग जाते हैं। जिस तरह जो है वो शैतान खुदावंद यीशु मसीह को बियाबान में आज़माता है और दूसरी आज़माइश में वो ऊँचे पहाड़ पर ले जाता है और कहता है कि यहाँ से तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत शैतान कलाम को अच्छी तरह समझता है, उससे पढ़ता है, उसको जानता है। सो वो उसी कलाम को जो है वो वहाँ कोट करता है और कहता है लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को तेरे लिए भेज देगा ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। लिखा हुआ है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। शैतान खुदावंद यीशु मसीह को कलाम मुकद्दस को जो है वो कोट करके, कलाम की बातों को कोट करके जो है वो उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, आज़माइश में डालता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसे जवाब देता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। तो मेरे जो कभी कभी हम रोजा खुदा की खुशनुदी को नहीं बल्कि उसको आजमाने के लिए रख देते हैं कि खुदावन मैं ये 10 रोजे रखूंगा, मैं हर जुम्मे को रोजा रखूंगा, तू मेरा ये काम कर देना, तू मुझे ये बरकत अता कर देना। मैं खुदावन पूरे 30 रोजे रखूंगा,
तू मेरी इस काम को जो है वो कर देना, मैं पूरे 40 रोजे रखूंगा, लेकिन तू मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी इस जरूरत को पूरा कर देना। तो मेरे चीजों, फिर हम खुदा की खुशनती नहीं, बल्कि हम खुदा को आजमाने के लिए रोजा रखते हैं। तो फिर इशाया नबी कहता है कि तुम लंबी लंबी दुआएं करोगे और तुम बहुत कुछ मांगोगे, लेकिन ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। हमारी नीयत ठीक नहीं, हम मांगते ठीक नहीं। हम रोजा रखते हैं तो मतलब से, उसने कहा तुम मांगते हो लेकिन अपने मतलब से, तुम्हारे होंठ तो मेरी तौकीर करते हैं लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। तो फिर ये खुशनुदी नहीं, खुदा की खुशनुदी नहीं, बल्कि हम खुदा को आजमाते हैं। जब कोई शर्त रख के, जब कोई चीज मांग कर हम खुदा के रोजे रखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और रोजे रखते हैं, तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें खुदा को खुश करने के लिए, आजिज़ी और इनकिसारी के लिए, ना कि आजमाइश के लिए। फिर हम देखते हैं, आज खास तौर पर गौर करेंगे कि इन रोजों का हमारी जिंदगियों पर क्या असर है और खुदा की पसंद का रोजा क्या है। अगर हम उसको खुशनुदी नहीं, अगर हम उसे आजमाए ना, तो फिर खुदा कैसा रोजा हमसे चाहता है। कलाम मुकद्दस से हम देखते हैं कि खुदा हमसे कैसा कैसा रोजा चाहता है। आए मेरे साथ खोलें मुकद्दस इशाया नबी का सहीफा, इशाया 58 बाब, उसकी 6ठी आयत से। इशाया 58 बाब उसकी 6ठी आयत। क्या मेरे पसंद का रोजा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोले और कजरवी की कड़ियों को तोड़ दे, मजलूमों को आजाद करे, हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि भूखे को अपनी रोटी तोड़े और आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स से छुप ना जाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, इशाया नबी खुदा के पसंदीदा रोजे का जिक्र करता है कि खुदा का पसंद का रोजा यही है कि हम आजिज़ी और इनकिसारी अपनाएं, ना सिर्फ फाका कशी, कि सिर्फ हम जो है खाली पेट रहें, लेकिन हमारे काम वही हो जो खुदा नहीं चाहता। बल्कि इशाया नबी वाज़े तौर पर आज हमें बताते हैं कि खुदा के पसंद का रोजा ये है कि हम कजरवी की कड़ियों को तोड़ें, अपने अंदर जो बंधन, जो ब्रिजेस, जो स्पीड ब्रेकर, जो दीवारें खुदा और इंसानियत के दरमियान में हाइल हैं, जो हमें नेकी करने से रोकती हैं, जो हमें अच्छाई करने से रोकती हैं, जो हमारी सख्त दिली है, जो हम नेकी के लिए जल्दी नहीं करते, और जब कोई जरूरतमंद, जब कोई हमें जरूरतमंद नजर आए या कोई हमसे मांगे, तो हम अपना दिल सख्त कर लेते हैं। आज कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि खुदा के पसंद का रोजा ये है कि हम कजरवी की कड़ियों को तोड़ें, जो बंधन, जो रुकावटें हमने अपने दिलों और आंखों और दिमाग पर लगा रखी हैं, उन तमाम कड़ियों को हम तोड़ें और दिल की सफाई से और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से खुदा की कुर्बत को रोजे की बदौलत, जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा
अपना फजल हमें अता करता है, लेकिन वो फजल कब मल्टीप्लाई होता है? जब हम अपने इरादों को भी जो है वो तब्दील करते हैं और अपने रवैयों को भी नरम करते हैं और कबूलियत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। दूसरों की कबूलियत मेरे अजीजों, दूसरों की कबूलियत। खुदा खुद किसी जरूरतमंद की शक्ल में हमारे पास खुद खुदा की सूरत में नहीं आता, बल्कि खुदा हमेशा इसी तरह जरूरतमंदों की सूरत में हमारे पास आता है। जब वो हमें जांचता है, जब वो हमें देखता है कि हम उसका जवाब किस तरह देंगे। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये रोजों के अयाम आजिज़ी और इनकिसारी के अयाम है कि फाका कशी के साथ साथ हम भूखे रहने के साथ साथ इन रवैयों को भी अपनाएं, जिसकी बदौलत खुदा हमसे जो कुछ चाहता है कि हम अपनी कजरवी की कड़ियों को तोड़ें और मजलूमों को आजाद करें। मजलूमों को आजाद करें। हमने बहुत से मजलूम कैद कर रखे हैं। जब हम कोई हमें दुख देता है तो हम वो अपने दिल में गुस्सा भर लेते हैं, गुस्से को जो है वो रख लेते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम इससे बदला जरूर लेंगे। ये मजलूमों को कैद रखना। जब कोई नुकसान हमें हो जाए तो हम उसको दुगना नुकसान करने के लिए सोच लेते हैं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इसे जरूर नुकसान पहुंचाऊंगा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज खुदावंद इन रोजों के अयाम में हमसे चाहता है कि हम इन मजलूमों को, जिन्होंने हमें दुख दिए, उन इरादों को, उन ख्यालात को, उन बातों को आजाद कर दें, आजाद कर दें। जिस तरह खुदा भी हमारे गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि वो हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, वो पलट कर उन्हें नहीं देखता। इसी तरह मेरे जीजो, जैसे हम फिलिपियों 6 बाब में पढ़ते हैं कि हमारा मजाज मसीह खुदावन का मजाज हो, तो फिर मसीह खुदावन का मजाज तो ऐसा ही है कि सलीब में सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसने कहा कि ए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज खुदावंद इन रोजों के अयाम में हमें तब्दील होने के लिए, आजिज़ी और इनकिसारी अपनाने के लिए, दूसरों को माफ करने के लिए, दुआ के जरिए खुदा के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए तलकीन करते हैं ये रोजों के अयाम। मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। जो जुए हमने अपने कंधों पर डाल रखे हैं, जो जुए जो बोझ हमने अपने कंधों पर उठा रखा है, वो खुदावंद आज नहीं चाहता कि हम उठाएं। आज वो चाहता है कि हम ये सारा बोझ उतार कर फेंक दें इन रोजों के अयाम में। सारे बोझ, जो गुस्से का बोझ हमने अपने कंधे पर उठा रखा है, जो मगरूरी का बोझ हमने अपने कंधों पर उठा रखा है, जो सख्त दिली का बोझ हमने अपने कंधों पर उठा रखा है, जो लड़ाई और गुस्से का बोझ हमने अपने कंधों पर उठा रखा है, आज खुदावन हमसे चाहता है कि हम इस सारे बोझ को उठा कर फेंक दें। खुदावन आज हमें इन रोजों के अयाम में आजाद करना चाहता है। हर एक जुए को तोड़ डालें। फिर जब हम खुदा की पसंद का रोजा रखेंगे, जब हम उसकी मर्जी का रोजा रखेंगे, ना सिर्फ फाका कशी हो, वरना मत्ती 6 बाब में लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को ना बिगाड़ो। वो शो करते हैं कि सब हमें देखें कि हम रोजादार हैं, हमने रोजा रखा है, हर किसी को बताते रहे कि मैंने रोजा रखा है, मैंने रोजा रखा हुआ है। उसने कहा जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह ना बिगाड़, बल्कि सर में तेल डाल और तुझे देखने से ये ना जाहिर हो कि तूने रोजा रखा हुआ है। फिर तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। ना सिर्फ दिखावे का कि सब देखें, बल्कि खुदा बाप पोशीदगी में जो हमें देखता है वो हमें रोजादार जानकर उसका बदला दे।
आजिज़ी और इनकिसारी अपनाने के लिए, खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, उसकी पसंदीदा रोज़ा रखते हुए, फिर खुदा जो बरक़ात हमें अता करता है, उसका ज़िक्र भी कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। फिर वो बरक़ात हमारी ज़िंदगियों में इस तरह आती हैं कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूटेगी और तेरी सेहत जल्द ज़ाहिर होगी। तेरी निजात तेरे आगे-आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा दंबाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो कहेगा, मैं हाज़िर हूँ। अगर तू अपने दरमियान से ज़ुल्म को और उँगलियों से इशारा करने को और बातिल करने को दूर करे। अगर तू भूखे के लिए अपनी जान को उंडेले और दुखी जान को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम रोज की मानिद होगी। खुदावन हर वक्त तेरी हदायत करेगा। मेरे अज़ीज़ो, जब हम खुदा की पसंद का रोज़ा रखेंगे, जब हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, तो फिर ये सारी बरक़ात, फिर तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट उठेगी। सुबह की मानिंद, सुबह मेरे अज़ीज़ो एक नया दिन, तारीकी, एक डर और खौफ का नाम, जब तारीकी की कुव्वतों का पहरा होता है और सुबह एक उम्मीद का नाम है। जब उजाला होता है, रोशनी ज़ाहिर हो जाती है, तारीकी छट जाती है, तारीकी चली जाती है और रोशनी नमूदार हो जाती है, उसे सुबह कहते हैं। तो आज का कलाम हमें बताता है कि फिर तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूटेगी। फिर वो तारीकियां जो हमारी जिंदगी में है, वो नाउमीदियां जो हमारी जिंदगी में है, वो कमजोरियां जो हमारी जिंदगी में है, वो सब जाती रहेंगी। सुबह की मानिंद कि वो तारीकी छट जाएगी, नूर जाहिर हो जाएगा, रोशनी नमूदार हो जाएगी। जिस तरह तारीकी में से सुबह नमूदार होती है, उसी तरह मेरे जो हमारी जिंदगी से ये सारी तारीकी की चीजें जाती रहेंगी, जिस्मानी कमजोरियां और बीमारियां जाती रहेंगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। जब ये तारीकी से हम निकल कर रोशनी में आएंगे, तो हमारी सेहत जल्द जाहिर होगी। सारी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। खुदा के फजल से हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी और हम खुदा के लायक ठहरेंगे। ये सब मेरे जीजो उसकी पसंद का रोजा रखने के बाद है। ये उसकी बरक़ात हैं। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा तो वो कहेगा, मैं हाजिर हूँ। मेरे जीजो, उम्मन हमारी शिकायत रहती है कि हम बहुत दुआएं करते हैं, हम बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता। लेकिन खुदा के कान भारी नहीं जो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी सख्त दिली के सबब से, कलाम मुकद्दस बताता है कि तुम्हारी अपनी सख्त दिली के सबब से दुआएं नहीं सुनी जाती। तो जब हम अपने दिलों को नर्म नहीं करेंगे, जब हम अपने जुओं को नहीं तोड़ेंगे, तो चाहे हम 40 पूरे रोजे क्यों ना, 24-24 घंटे के पूरे 40 रोजे भी क्यों ना रखें, लेकिन जब हम अपने दिलों को नरम ना करें, जब दूसरों के लिए अपने आप को तैयार ना करें, उनको कबूल करने के लिए तैयार ना हो, किसी को माफ करने के लिए तैयार ना हो, फिर मेरे जो ये रोजे रखना महज फाका कशी होगा। लेकिन आज खुदावंद अपने पाक कलाम के जरिए हमें बताता है कि हमें फाका कशी फक्त नहीं करनी, बल्कि हमें उसकी मर्जी के मुताबिक
उसकी तालीम के मुताबिक रोज़ा रखना है, जब हमें आजिज़ी और इनकिसारी अपनानी है। दुआ के ज़रिए खुदा के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत करना है, अपने दुआया वक़्त को बढ़ाना है। इन रोज़ों के अय्याम में खुदा के साथ अपनी कुर्बत को बढ़ाना है, ताकि आने वाली ईद क़यामतुल मसीह, ईस्टर, हम यकीनी तौर पर उस जी उठे यीशु की ईद मनाने वाले हों, उसको सेलिब्रेट करने वाले हों, ताकि हकीकी तौर पर हम उसकी गवाही देने वाले हों कि वो जी उठा यीशु है, वो ज़िंदा खुदा है। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? जब हम अपने आप को जो है वो तब्दील करेंगे, जब हम अपनी पुरानी रविशों को निकालेंगे, जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे। यकीनी तौर पर मेरे अजीज भाई और बहनों, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, मसरूफियत है और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी बदौलत शायद हम कलाम के मुताबिक 100% जिंदगी नहीं गुजार पाते। लेकिन खुदा फरमाता है, खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो हम इस बात का ईमान रखें कि उसका फजल, उसकी बरकत हमेशा हमारे लिए, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जरूरत है उसमें दाखिल होने की, उसके करीब जाने की, उसको अपने करीब आने के लिए दरवाजा खोलने की। वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। कब हम दरवाजा खोलें और वो अंदर आए, क्योंकि वो चाहता है कि जहाँ वो हो, जहाँ वो है, वहाँ उसके बेटे और बेटियां भी हों। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इन रोज़ों के अयाम में हम अपने आप को आजिज़ और इनकिसार बनाएं, एक दूसरे को माफ करने वाले और माफी मांगने वाले हों। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, तो आए इन रोज़ों के अयाम में उससे माफी मांगे। वही अंदाज अपनाएं जो मसीह यीशु का था, वही मजाक, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम वही कदरें अपनाएं जो उसने नमूने के तौर पर हमें अता की हैं। कलाम मुकद्दस आज सारी बातें हमें बताता है। हमारे घरों में कलाम मुकद्दस हैं, हम रोजाना उसको पढ़ते हैं। कोशिश करें कि वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ तब्दीली इन रोजों के अयाम में हमारी जिंदगियों में आए, खास तौर पर आजिज़ी और इनकसारी, दुआ और खैरात के जरिए, दूसरों की मदद करके, दूसरों की मदद कर कर हम खुदा की खुशनुदी को हासिल करते हैं। तो इन रोज़ों के अयाम में हम खुदा के पसंद का रोज़ा रखने वाले हों, ताकि जब हम रोज़ा रखें तो ना सिर्फ फ़क़्त फ़ाका कशी हो, बल्कि वो खुदा की पसंद का रोज़ा हो और उसकी बरक़ात, उन रोज़ों के बदले उसकी बरक़ात हम हासिल करने वाले हों। और जब हम उसे पुकारें तो वो कहे कि बता मेरा बेटा या मेरी बेटी, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? ना कि हम शराइत रख कर रोज़ा रखें कि पहले उसके सामने शराइत रख दें, बल्कि सिर्फ़ उसकी खुशी को हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, उसकी कुर्बत को हासिल करने के लिए और उसके प्यार को हासिल करने के लिए, उसके साथ रिश्ते को मज़बूत करने के लिए इन रोज़ों के अयाम को अपनाएँ और रोज़े रखें, दुआ करें, खैरात करें, एक-दूसरे की मदद करें और माफ़ करें। और किसी से अगर हमने किसी को दुःख पहुँच दिया है, कोई गलती हुई है, तो उससे माफ़ी माँगे, ताकि आने वाला ईस्टर हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी बरक़ात लेकर आए और हम हमेशा जी उठे यीशु की गवाही देने वाले हों कि उसने मेरी ज़िंदगी में बड़े-बड़े अजीबो-गरीब काम किए हैं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।